Hello and welcome everyone in our next class of catalysis, which is the second one class. And as in previous class, as we have discussed, simply what is meant by catalyst, that is introduction of catalyst, then definition of catalyst, then the process of catalysis, then positive and negative catalysis. That is, I mean to say, whenever you have positive and negative catalysis, at that time, how can we say one catalysis process is as positive catalysis and which process is known as negative catalysis process? So whatever these things are there, these things you have learned in your previous class. If you haven't seen your previous class, then please complete first one class, then try to attend the second one class, because to clear out whatever the next things are, you should be very well known. You should be very well known with the thing, that is the types of catalysis. ये पढ़ने के लिए आप लोगों को सबसे पहले कैटलिस्ट मतलब क्या, उसके बाद में कैटालिसिस का मतलब क्या, पॉजिटिव नेगेटिव कैटालिसिस मतलब क्या, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दो things are very simple one, but what those things are, which are they, what are they, that you must have to know firstly, then after. In today's class, as I told you, in previous class, we will be learning about simply types of catalysis. So, types of catalysis, whatever these types of catalysis are there, these types of catalysis are of importantly or majorly three types. Whatever these three types are there, which about the type catalysis, they are nothing but very first one type of catalysis is known as homogeneous catalysis, second one is heterogeneous catalysis, third one is enzyme catalysis. But specifically in your syllabus, they have mentioned or they have included just only first two types in detail, and then after just the introduction, or after every part when we learn about catalysis, then they included just what is mean by enzyme catalysis, or you can say whatever enzyme catalysis is there, हाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट प्रोसेस, ऐसा आप लोगों को थोड़ा सा मेंशन किए वाला है, बट सब कुछ डिटेल में नहीं है आपकी स्टेज को. आप लोग जब एमएससी वगैरह करोगे, आगे जब भी आप अगली स्टेज में केमिस्ट्री में डेप्थ में जाओगे, तब आप लोगों को वो सारे एंजाइम कैटालिसिस कौन होता है, क्या प्रोसेस होती है, वो सब कुछ डिटेल में है. बट आपके अगले स्टेजेस में लाइक बीएससी थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर देन एमएससी, वहां पर आप पढ़ोगे इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में. यहाँ आप जो भी पढ़ोगे वो बहुत ही कम अमाउंट में होगा. अब इसके बाद में, जैसे कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बोला है कि वो in today's class we are going to learn types of catalysis, but उससे पहले मैंने कुछ स्लाइड्स बनाए हैं आप लोगों को पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटालिसिस के बारे में बताने के लिए, जैसे कि मैंने इससे पहले भी बोला था, बट कुछ और अच्छे स्लाइड्स मैंने लिए हैं. तो पहले उन स्लाइड्स को लोड करती हूँ, वो समझा करके टाइप्स ऑफ कैटालिसिस आपको एक्सप्लेन करती हूँ. देखिए, जब कभी भी हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटालिसिस के बारे में पढ़ते हैं, तो आप वो दोनों पॉजिटिव और निगेटिव कैटालिसिस जब भी पढ़ते हो, तब आप लोग कंफ्यूज मत हो कि पॉजिटिव एंड निगेटिव कैटालिसिस भी टाइप ऑफ कैटालिसिस है. पॉजिटिव कैटालिसिस और निगेटिव कैटालिसिस मतलब क्या, उसके लिए मैं स्लाइड लोड कर रही हूँ. So for this purpose, simply wait a minute, wrong slide has been included.
यस। सो अगर आप रफली चाहते हो कैटालिसिस का क्लासिफिकेशन करना, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आपके जो कुछ भी ये कैटालिसिस है उनमें वेरी फर्स्ट वन टाइप ऑफ कैटालिसिस, एज आई टोल्ड यू, मेजरली इट इज होमोजेनियस कैटालिसिस, heterogeneous catalysis. Then after types of catalysis में हम पढ़ते हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव एज अ टाइप्स मत दो, बट ये क्या क्या हम इस टाइप्स में पढ़ने वाले हैं उसके लिए. देन एसिड कैटालिसिस मतलब क्या, बेस कैटालिसिस मतलब क्या, ऑटो कैटालिसिस मतलब क्या, एंड फाइनली एंजाइम कैटालिसिस. सो ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं इन कैटालिसिस के, इस कैटालिसिस के टॉपिक में. और ये जो कुछ भी है तो ये आप रफली टाइप्स ऑफ कैटालिसिस दे सकते हो, बट अगर से आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछे व्हाट इज मीन बाय टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, तो आप लोगों को 3 ही मेंशन करने हैं, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस एंड देन आफ्टर एंजाइम. अगर से आप एंजाइम कैटालिसिस देते भी नहीं हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आपकी स्टेज के लिए. ओके, नाउ come to the next point. When you have these catalysis types, after this next is we will look towards positive and the negative catalysis. So whatever this positive and the negative catalysis is, this positive catalysis means what? Simply जब कभी भी पॉजिटिव कैटालिसिस के बारे में बात आती है तो मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बोला है, whatever the positive catalysis is there, positive catalysis will be always the type of catalysis, or that is nothing but the phenomena wherever increasing the rate of reaction. मतलब कि एक आध केमिकल रिएक्शन का अगर से रेट ऑफ रिएक्शन आप लोगों को बढ़ाना है, तब जो कुछ भी फेनोमेना होता है या फिर तब जो कुछ भी चेंजेस होते हैं, आप कैटालिस्ट ऐड करने के बाद में, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन जब भी बढ़ेगा तब उस फेनोमेना को ही हम बोलते हैं पॉजिटिव कैटालिसिस. कौन सा कैटालिसिस? पॉजिटिव catalysis. So in this positive catalysis they may ask you type of positive catalysis example. So very first one example is there, in positive catalysis for example जो कुछ भी यहाँ पर तो उसकी रिएक्शन होगी. आई मीन टू से व्हेन यू हीट और व्हेन यू वांट टू ट्रीट और व्हेन यू वांट टू कन्वर्ट KClO3 molecules, KClO3 molecules, and then they breaks down into 2 KCl molecules plus 3 O2 molecules. But when this process is taking place, at that time this process takes place very slowly. मतलब आपको वो रिएक्शन करने के लिए, समझ लो, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, एक आध 2 दिन या फिर महीना, 2 महीने, एक आध साल वगैरह ऐसा लगता तो इतना नहीं है, बट मैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल बोल रही हूँ. अगर से आप समझ लो 2 दिन लगते हैं ये रिएक्शन करने को, बट एज सुन एज मतलब कि जैसे ही आप MnO2 ऐड करोगे तब क्या होता है कि whatever this KClO3 molecule is there, this can get decomposed very easily and very fastly, as we can measure out the rate of reaction, and that can be converted in the presence of catalyst which is named as MnO2 manganese oxide or manganese dioxide you can say. And whatever this manganese dioxide is there, when as soon as you add or as soon as you use manganese dioxide in your KClO3, then it gives one product is as KCl and one product is as oxygen. And ये रिएक्शन होते हुए आपको बहुत ही कम टाइम में ये रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी. और एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है H2O2 का डिकम्पोजिशन. किसका डिकम्पोजिशन? H2O2 का डिकम्पोजिशन. Why? Because we wanted to learn this H2O2's example, because H2O2 बहुत ही slowly decompose होता है वाटर
वाटर मॉलिक्यूल और कुछ नेसेंट ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में, नेसेंट ऑक्सीजन में। अब ये होने के लिए भी बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। अब ये होने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम अगर से लगता है और हमें ये रिएक्शन बहुत फास्टली कन्वर्ट करनी है, तो हम कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? एंड दैट टाइप ऑफ कैटलिस्ट इज नथिंग बट द प्लैटिनम कैटलिस्ट. Which catalyst? Platinum catalyst. And when you use or when you add up this platinum catalyst into H2O2, then this is converted into one molecule of H2O and the nascent oxygen. Nascent oxygen मतलब उसको हम बताते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, मतलब हमेशा हम हमारे किसी भी गैसेस मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डायटोमिक स्टेट में बताते हैं, बट नेसेंट मतलब वो अकेले एंड फ्रेशली प्रिपेयर्ड या फिर न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन, ऐसे भी बोल सकते हो आप। नेसेंट मतलब न्यूली बॉर्न या फिर जस्ट फॉर्म किया है आपने फ्रेशली, तो उसको आप बताते हो या फिर रिप्रेजेंट करते हो इन ए स्क्वायर ब्रैकेट. ओके, सो दिस इज all about positive catalysis. I think you have learned and you are clear with the positive catalysis completely, and why to learn or why to use catalyst and how positive catalysts are acting, that I think you are clear with this. Now I'm going to turn towards the negative catalysis. I'm going to turn towards the negative catalysis. Now, what is mean by negative catalysis? That about I'm going to tell you. But before that, let me just load this slide, which will give you very important information and the example. Okay, slide is right in front of you. And in this slide, I'm going to tell you what is mean by negative catalysis, as you know very well. करेक्ट है आपके माइंड में जो कुछ भी आ रहा है. अब ये जो कुछ भी नेगेटिव कैटालिसिस है, तो नेगेटिव कैटालिसिस इज नथिंग बट द रिएक्शन whose rate of reaction, मतलब एखाद रिएक्शन अगर से बहुत ही फास्ट हो रही है, समझ लीजिए फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में या फिर 2-3 मिनट में या फिर 5-10 मिनट में होती है, ऐसी एखाद रिएक्शन होगी, तो ऐसे रिएक्शन का रेट कम करने के लिए, किसके लिए? डिक्रीज मतलब कम करने के लिए आप यूज करते हो ऐसे कुछ कंपाउंड्स या फिर सब्सटेंसेस, उसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट. और जो करते हैं आपके रिएक्शन का रेट कम, क्या करते हैं? आपके रिएक्शन का रेट कम करते हैं. इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं नेगेटिव कैटालिसिस. क्या बोलते हैं? नेगेटिव कैटालिसिस. एंड फॉर द detailed explanation of this negative catalysis, we will look towards simply example of negative catalysis that is right in front of you, which is, दूसरा थोड़ा कलर लेती हूँ पेन का, so that you can be clear. तो अब देखिए, हाँ अच्छे से अगर से समझ ली, आप बोलोगे मैम अभी तो आपने क्या किया था कि H2O2 का पॉजिटिव कैटालिसिस में भी एग्जाम्पल दिया था डिकम्पोजिशन के लिए, अब यहाँ पर भी क्यों दे रहे हो? क्योंकि अगर से H2O2 यूज करके आप एक आध रिएक्शन कर रहे हो तो थोड़ी फास्टर होगी, बट उतनी फास्टर अगर से आपको रिएक्शन नहीं चाहिए तो उसको अल्टरनेटिव है, आप सब्सटेंस एक यूज कर सकते हो जिसका नाम है एसिटेनोलाइड. क्या नाम है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसका नाम है एसिटेनोलाइड. तो ये जो अब वो क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सब कुछ हम डिस्कस नहीं करेंगे. बट when you have H2O2 and that H2O2 is converting into H2O and O, that is oxygen, and as you can pick out or pick out the mistake that is इस जो स्लाइड में है, वो स्लाइड में मैंने जानबूझ के यहाँ पर ऑक्सीजन सिर्फ लिखा था क्योंकि आप लोग वहां पर चेकआउट कर सको कि ये नेसेंट ऑक्सीजन है. ओके, नाउ अब ये जो कुछ भी H2O2 का डिकम्पोजिशन होता है या फिर H2O2 का कन्वर्जन H2O प्लस ऑक्सीजन में होता है, जब कभी भी ये प्रोसेस होती है तब क्या होता है कि यहाँ पर इस प्रोसेस में H2O2 का कन्वर्जन फास्टली होने, मतलब ये जो कुछ भी है वो कंपैरेटिवली वो रेट ऑफ रिएक्शन कम करेगा than that of your
original reaction or when you were using the positive catalysis. Now let me come to the next point, that is knocking of petrol by tetraethyl lead. Knocking of petrol by tetraethyl lead. Now you may ask me, ma'am, what is mean by tetraethyl lead? What is that beta? tetraethyl lead. And knocking of petrol मतलब क्या, वो भी समझाती हूँ, क्योंकि हर एक वर्ड आप लोगों को मेरे स्लाइड में आ रहा है, वो समझना बहुत ही जरूरी है. तो व्हाट इज दैट? इट इज नथिंग बट इट इज मतलब नॉकिंग. नॉकिंग मतलब जब भी, अच्छे से सुनो, मैं जानबूझ के हिंदी में बोल रही हूँ क्योंकि सबको समझ में आना चाहिए. नॉकिंग ऑफ पेट्रोल मतलब जब कभी भी आप पेट्रोल कार में, बाइक में वगैरह यूज करते हो, गाड़ियों में जब आप पेट्रोल यूज करते हो, तब क्या होता है कि ये पेट्रोल धूप काले की सीजन में, मतलब इन समर डेज और इन रेनी डेज में और विंटर डेज में आग लगने की मतलब उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं रहती है. या फिर ये जो भी पेट्रोल रहता है, ये पेट्रोल क्या होता है कि समहाउ वो क्या बोलते हैं हम, हीट को इजीली ग्रास्प करता है, या फिर मतलब कि हीट जल्दी से उस पर एक्ट हो जाती है. अब ऐसा ना हो, अब ऐसा ना हो, इसलिए आप क्या कर सॉरी ऐसा ना हो इसलिए आप क्या कर सकते हो, उसमें टेट्राइथाइल लेड, मैं स्ट्रक्चर निकाल के बताती हूँ. वेट अ मिनट, लेट मी टेक जस्ट पेन. लेड मतलब पीबी, आपको पता है. टेट्रा इथाइल, टेट्रा मतलब चार, और चार मतलब चार टाइम, 1 2. कितने कितने आप ये लोग उसमें, वेट अ मिनट, कितने इथाइल मॉलिक्यूल्स लोगे? चार. टेट्रा इथाइल लेड मतलब चार इथाइल के मॉलिक्यूल्स आप उसको लगा दोगे. तो कैसे और क्या? 1C2, ओ स्लाइड के बाहर चले गया. C2H5, यहाँ पर भी C2H5, यहाँ पर भी C2H5, एंड यहाँ पर भी C2H5. एक्चुअली ऐसा निकालना चाहिए. एंड नाउ जब कभी भी ये ऐसा आपका कंपाउंड, सॉरी, जब कभी भी आपका ऐसा आप कंपाउंड होगा, इसको बोलते हैं पीबी इज लेड एंड इथाइल कितने टाइम लिया है? 1 2 3 और 1 4. ऐसे 4 टाइम जब आप टेट्रा इथाइल लेड लोगे, उसको बोलते हैं आप टेट्रा इथाइल लेड सब्सटेंस. क्यों आया? आपका जो कुछ भी, देखिए, जब कभी भी आप पीबी मतलब कि लेड ऐड करते हो, पीबी मतलब कि लेड ऐड करते हो, तब क्या होता है कि ये जो कुछ भी पीबी मतलब लेड एंड उसके साथ में टेट्रा इथाइल मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं, तो ये कंपाउंड इज ट्रीटेड एज नॉकिंग, एंटी नॉकिंग एजेंट, नॉकिंग एजेंट. एंड ये नॉकिंग एजेंट्स मतलब आपका जो कुछ भी पेट्रोल है उसकी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, उसका जो कुछ भी वर्किंग है वो बढ़ाते हैं, एज वेल एज ये जो कुछ भी आपका टेट्राइथाइल लेड होता है, वो आपके पेट्रोल के ईज ऑफ बर्निंग के लिए, मतलब आपका पेट्रोल अच्छे से जले, ना कि वो वेस्ट हो, इसलिए आप उस वहां पर आपका टेट्राइथाइल लेड ऐड करते हो पेट्रोल में. एंड इट इज नथिंग बट द नेगेटिव कैटलिस्ट, मतलब आपका पेट्रोल ज्यादा यूज ना हो. ऐसे आप बोल भी सकते हो एक्चुअली कि पेट्रोल वेस्ट ना हो. क्यों? क्योंकि जब आप टेट्रा इथाइल लेड डालते हो आपके पेट्रोल में, तब वो आपके पेट्रोल के जो कुछ भी मॉलिक्यूल्स बर्न होते हैं, वो अच्छे से बर्न हो, इसकी प्रिकॉशन लेता है. आई थिंक you guys must be clear with positive negative catalysis very clearly. अब देखिए, इसके बाद के क्लास में हम पढ़ेंगे types of catalysis which is nothing but homogeneous and heterogeneous. For today I think this is okay. आफ्टर दिस अगर से मैं कंटिन्यू करूंगी क्लास, तो आपके माइंड के लिए थोड़ा सा हेवी हो जाएगा. इसके लिए पहले पहला पार्ट क्लास 2 देख लीजिए, क्लियर कर लीजिए, फिर जो मैं आप लोगों को देने वाली वो देख लीजिए.
Okay, guys, thank you so much. And to learn what is mean by homogeneous, heterogeneous, and enzyme catalysis, please watch my next class. Thank you so much.